When is a parent born? When your world changes in a moment? Nani? Or when the moment is celebrated by all? When you start learning again? Or with a new role? Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice. Good afternoon, everyone. Welcome to all of you in this online session. I welcome to all of you on behalf of Core Life, Dr. Anita Singh. I'm Sumit Agarwal. We are having Ms. Sonali Shivlani with us. Dr. Anita Singh will also join us shortly. She is quite busy. So as soon as she gets some time in the mid of the session or in the end of the session, she would be addressing you, all of you. सोनाली मैम के बारे में थोड़ा सा बताएं तो सोनाली मैम इज इंडियाज लीडिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट नेटल एक्सपर्ट. She is an internationally certified pregnancy, lactation, child and nutrition counselor. This session is being recorded. आपके जो भी doubts हैं on the topic, you can share with Sonali ma'am. In the end of the session, she will be answering all of your questions. So we will be providing you the recording of this video session also. अभी कुछ participants join कर रहे हैं. So meanwhile we can have a brief detailed information on stem cells banking particularly. See stem cells now a very known topic. अभी ये बहुत ज़्यादा नया topic नहीं रहा है. स्टेम सेल्स के बारे में बात करें तो स्टेम सेल्स एक्चुअली आर दी मास्टर सेल्स ऑफ द बॉडी जो अपने आप को डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ सिंपल सीड जो अपने आप को एक सिंपल प्लांट में डिफरेंशिएट करता है. देन धीरे धीरे उस पे एक ट्री फॉर्म होता है एंड उससे फ्रूट्स एंड एनीथिंग वी कैन हैव. सो as we grow, stem cells specialize होते हैं, different specific functions form करते हैं human body के. बेबी जब भी आता है बहुत सारी खुशियां लेकर आता है. क्या हम लोगों ने कभी ये भी सोचा है कि वो अपने साथ कुछ वैल्यूएबल स्टेम सेल्स लेकर आ रहा है जो एक तरह से संजीवनी के तरीके से काम कर सकते हैं? जी हाँ, ये स्टेम सेल्स अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड के अंदर पाए जाते हैं जो बेबी और मदर को कनेक्ट करते हैं. एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हमारी पैरामेडिक टीम ये स्टेम सेल्स को कलेक्ट करती है, लेबोरेटरी में इसको ट्रांसफर किया जाता है और वहां पर इस कॉर्ड ब्लड से स्टेम सेल्स का हार्वेस्ट करके -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रिजर्व किया जाता है. थोड़ा सा टेक्निकली देखें तो इन स्टेम सेल्स से हमको हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स मिलते हैं जो कॉर्ड के अंदर ब्लड है उसको जब हमने हार्वेस्ट किया, प्रोसेस किया और जब स्टेम सेल्स निकाले गए सो ये स्टेम सेल्स टेक्निकली हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स कहलाते हैं. अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड टिश्यू का पार्ट भी हम लोग कलेक्ट करके अपनी लेबोरेटरी में लेकर जाते हैं जहां से हम मीसेनकाइमल स्टेम सेल्स और एपिथेलियल स्टेम सेल्स हार्वेस्ट कर सकते हैं. There are many success stories on stem cells जहां पर सक्सेसफुली स्टेम सेल्स का रिट्रीवल हुआ है फॉर द ट्रांसप्लांटेशन. खुद बेबी के लिए भी स्टेम सेल्स के रिट्रीवल्स हुए हैं, सिबलिंग्स के लिए भी स्टेम सेल्स के रिट्रीवल्स हुए हैं. सो एक बेबी जो अपने साथ स्टेम सेल्स लेकर आ रहा है उससे उसके भाई बहन माता पिता भी स्टेम सेल्स का ट्रीटमेंट ले सकते हैं. So likewise, leukemia was cured by the baby sister stem cells. Cerebral palsy का भी stem cells से treatment हुआ है.
ओन कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल से न्यूरोब्लास्टोमा का ट्रीटमेंट हुआ, एंड दी मोइनम पालिसी बेबी जहां पर सिबलिंग्स के स्टेम सेल से थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट किया गया। सो ये सारी इंफॉर्मेशन को सुनना समझना बहुत जरूरी है, because this can be very valuable for ourselves, for somebody else also. So I would request you that after this session or in the 2 or 3 days gap, you will be getting a call from the Cord Life to take this free session. So this is absolutely a free session. This takes around 30 to 35 minutes for a laptop presentation. We can arrange the presentation over the online platforms like Google Meet or Zoom, or if you are okay with that, we can visit your place also. So this is absolutely free. आप इसमें पूरी information ले सकते हैं so that you can have the updates on the stem cells banking. We are a Singapore-based company, internationally recognized company है. India में headquarter is in Kolkata और laboratory based in Kolkata only. So 9 countries में we are present. Asia Pacific region में this is the oldest and largest stem cells network है. Financially sound company है. We are publicly listed in Singapore Stock Exchange. And for running a stem cells company, whatever these accreditations or certifications are required, quality certifications, that every certificates we are having. So Cord Life आपका umbilical cord tissue जैसे मैंने आपको भी पहले भी बताया था, इसको भी प्रिजर्व कर रहे हैं। तो यहाँ से हम मेसेंकाइमल सेल्स एंड एपिथेलियल सेल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था स्टेम सेल्स बैंकिंग के बारे में, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज बुक योर प्रेजेंटेशन। आप हमारी ऑनलाइन वेबसाइट पर भी जाके बुक कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर्स इन द एंड ऑफ द सेशन वी विल बी शेयरिंग द टोल फ्री नंबर्स, या आपके पास कॉर्ड लाइफ की तरफ से जब भी कॉल आता है इसको प्लीज बुक कीजिए। सो दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कोर्स। आपने सिर्फ 35 मिनट्स का टाइम थोड़ा सा निकाला है। जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, या जितने भी अपडेट्स हैं स्टेम सेल बैंकिंग के बारे में, जो भी रिसेंट ट्रांसप्लांटेशंस किए हैं, वो सभी चीजें हम आपसे शेयर करेंगे। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर दिस सेशन टू सोनाली मैम। अनीता मैम, डॉक्टर अनीता जैसे ही फ्री होंगी वो आपसे एड्रेस करेंगे। Hi everybody, बहुत बहुत welcome, warm welcome, good afternoon. Thank you for joining us today. सुमित ने मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी दे दिया है, बट थोड़ा सा अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं लास्ट ऑलमोस्ट 18 years से इस प्रोफेशन में हूँ, and I have been conducting pregnancy post delivery programs for families. I have worked with more than 40,000 families till date. मेरे खुद के on a personal basis I have 2 kids as well, and a lot of times जो personal experiences है या client experiences है, all of these come out as little stories for all our families. So once again thank you for joining us. सुमित ने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये सेशन कॉर्ड लाइफ ने ऑर्गेनाइज कराया है आपके लिए। कॉर्ड लाइफ इंडिया की एक लीडिंग स्टेम सेल बैंक है। ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, इसीलिए आपको म्यूट पे रखा गया है, बट इसका मतलब ये नहीं है आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। जो चैट बॉक्स आपको साइड में दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड, उस पे क्वेश्चंस का बॉक्स है, आप उसमें अपने सारे क्वेश्चंस डालते जाइए। सेशन बंद करने से पहले हम जरूर आपके सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे। और इस सेशन की रिकॉर्डिंग एज वेल एज एक स्पेशल आपके लिए सरप्राइज है जो मैं आपको एंड ऑफ द सेशन में बताऊंगी। ये सब आपको कॉर्ड लाइफ की टीम सेशन के 48 to 72 आवर्स के बाद कांटेक्ट करके पहुंचा देगी। तो अब ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं, वीकेंड है, आई नो कोरोना का टाइम चल रहा है, सारे लोग घर ही बैठे हैं, तो चलिए घर से सेशन हो रहा है, बट फिर भी यू वुड लाइक टू हैव सम फ्री टाइम। तो ये सेशन लगभग 1 घंटे का है। आप आपके जो पार्टनर है, अगर हस्बैंड वगैरह है घर पे, तो उनको भी साथ जरूर ले लीजिए, अपने आप को कंफर्टेबल कर दीजिए, so that we can spend time with you and explain everything about labor, delivery, pain management, and some breathing exercises with you. So labor की जो तैयारी है,
आमतौर के जो लोग मदर्स खास करके लेबर से बहुत डरते हैं. एज अ फर्स्ट टाइम मदर, जब आई वाज प्रेग्नेंट द फर्स्ट टाइम, वो बहुत एप्रीहेंशन था कि लेबर इज वेरी पेनफुल एंड बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत लोगों से पूछा एंड लोग जनरली नेगेटिव स्टोरी सुनाते हैं. पीपल डोंट टेल यू पॉजिटिव स्टोरीज, राइट? तो उस हिसाब से it's not as bad as that and it's a normal process, so you should not be getting worried about it. But इसका मतलब ये नहीं है कि we shouldn't prepare for it. And labor की जो तैयारी होती है वो pregnancy से शुरू होती है. You have to consider कि pregnancy is your preparatory period. आप कोई भी अगर एग्जाम देते हो तो उसके लिए पहले से तैयारी करते हो, लास्ट डे पे जाके एग्जाम नहीं देते हैं. तो प्रेगनेंसी जो है वो 9 months आपको मिले हैं तैयारी करने के लिए फॉर योर डिलीवरी एंड फॉर योर पेरेंटिंग जर्नी. तो पहली चीज होती है डाइट, दूसरी है रेगुलर एक्सरसाइजेस, तीसरी है मिथ्स जो हमको डराती है, जो हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा करती है, क्योंकि हम उन चीजों से कतराते हैं, डरते हैं. वी मूव अवे फ्रॉम इट एंड देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर अस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ स्ट्रेस फ्री माइंड. तो इन सब चीजों के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे. सो पहली है डाइट. एंड डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ही कोई स्पेसिफिक प्लान फॉलो करना है, बट आपको हेल्दी खाना है. एंड ऑनेस्टली एवरीवन नोज कि हेल्दी क्या होता है. सो हेल्दी ऑब्वियसली आपके बेबी को नरिश करता है, आपको हेल्दी रखता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए रखता है. इम्यूनिटी आज के दिन पे तो इज सच अ वैल्यूएबल थिंग, राइट? अगर इम्यूनिटी नहीं तो वी आर डेफिनेटली ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलनेसेस आल्सो. इसके अलावा एक और बेनिफिट होती है, जब हम हेल्दी खाते हैं ना, हमारी बॉडी हेल्दी है, तो लेबर जब पेन्स होते हैं, जब वो बॉडी को थोड़ी तकलीफ होती है, द बॉडी इज एबल टू मैनेज इट वेल. अगर आपको मैराथन रन करना है या कोई भी एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी करनी है, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहोगे एंड यू बीन ईटिंग हेल्दी फॉर अ फ्यू वीक्स, फॉर अ फ्यू मंथ्स बिफोर, इट विल हेल्प यू. सो फर्स्ट थिंग इज ईट अ बैलेंस्ड डाइट. जब बैलेंस डाइट होता है तो वी आर ईटिंग ऑल द फूड ग्रुप्स. जब हम हेल्दी बोलते हैं, आई थिंक इफ आई से रोटी सब्जी, यू विल से ऑफ कोर्स इट्स हेल्दी. यस, आई आल्सो एग्री इट इज हेल्दी, बट इज इट बैलेंस्ड? क्योंकि उसमें प्रोटीन्स नहीं है. तो रोटी सब्जी दाल दही, दैट वुड बी अ बैलेंस्ड मील. सो जो भी आप अपने लिए प्लेट बनाते हो ब्रेकफास्ट लंच डिनर में, ट्राई एंड इंक्लूड एवरीथिंग. ट्राई एंड इंश्योर कि आपके पास हेल्दी कार्ब्स हैं, जैसे रोटी है, ब्राउन राइस है, आप बाजरा जवर नाचनी इन सबके बाकरी बना सकते हैं. उसके साथ वेजिटेबल, उसके साथ दाल, छोला, राजमा, वटाना, कोई भी प्रोटीन की चीज, एंड एक कटोरी दही या एक ग्लास लस्सी, ऐसे कुछ अगर आप ले लेंगे तो आपकी डाइट बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगी. अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी इज अटैच्ड टू योर प्लेसेंटा एंड उसको तो 24/7 ब्लड फ्लो है, विच मीन्स उसका जो न्यूट्रिशन है वो 24/7 चालू रहता है. सो मदर्स को हम रेकमेंड करते हैं कि हर 2 से 3 घंटे यू शुड ईट. जब आप हर 2 से 3 घंटे खाते हो, आपका शुगर लेवल मेंटेन रहता है एंड इससे जो बेबी को न्यूट्रिशन जा रहा है वो बिल्कुल सही जाता है एंड बेबी की ग्रोथ ऑप्टिमल होती है. अगर बेबी इज वेल प्रिपेयर्ड, अगर बेबी हेल्दी है, तो उसको लेबर के टाइम पे कोई तकलीफ नहीं होती एंड वो बड़े आसानी से बाहर आ जाते हैं. तो इसीलिए मेक श्योर कि आप हर 2 से 3 घंटे खाएं. इससे आपकी हेल्थ भी बनी रहेगी, आपकी शुगर लेवल्स नॉर्मल रहेगी और बेबी की हेल्थ को भी बहुत बेनिफिट्स होंगे. द नेक्स्ट थिंग इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. अभी आपके बेबी पानी में रहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, राइट? तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इट इज नॉट अ कांस्टेंट. ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी शुरू हुई और यूट्रस में पानी भर जाता है. इट इज अ फ्लश टैंक. उसमें पानी भरता है, निकलता है, भरता है, निकलता है. एंड भरता कैसे है? जब आप इनफ फ्लूइड्स लेते हो. So you should have plenty of fluids. Recommendation is 10 to 12 glasses, about 2.5 to 3 liters every 24 hours. The next important part is अपने prenatal supplements आपको लेना जरूरी है, right? अब डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किए हैं, आयरन, कैल्शियम, ओमेगा 3, फॉलिक एसिड, जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन है वो आपको लेना जरूरी है. आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं हेल्दी खा रही हूँ तो मुझे ये लेने की क्या जरूरत है. ये पता नहीं है कि आपकी बॉडी ये जो खाना हम खा रहे हैं उसको किस तरह से एब्सॉर्ब कर रही है. और हमारे पास एक शॉर्ट ड्यूरेशन है टू मेक अ हेल्दी बेबी
इसीलिए हम इंश्योर करते हैं कि हम अपने प्रीनेटल सप्लीमेंट्स भी ऑन अ रेगुलर बेसिस लेते रहें, राइट? सो अगर आपको कोई सप्लीमेंट सूट नहीं करता है तो आप प्लीज इंश्योर करें कि आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, अपने मर्जी से या मन से उनको बंद ना करें। अब बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। तो पहली बात तो आपको डॉक्टर से चेक कर लेना चाहिए कि आपको एक्सरसाइज करना अलाउड है या नहीं। अगर आपको एक्सरसाइज करना अलाउड है तो एक्सरसाइज की बेनिफिट्स की बात करें। एक्सरसाइज इज गोइंग टू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर लेबर, क्योंकि आपके जो मसल्स हैं, आपकी जो लंग कैपेसिटी है, ये सारे एक्सरसाइज से प्रिपेयर होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ एक्स, पेन्स, डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, वो कम हो जाएंगे। इट विल हेल्प टू रिलैक्स यू। नींद अच्छी आती है एंड इट इज हेल्पफुल फॉर द बेबी ऑल्सो, सो इट विल हेल्प यू इन ओवरऑल फीटल डेवलपमेंट। अब अगर हमको पता नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, द सेफेस्ट एक्सरसाइज इज वॉकिंग। इन दिस करंट सिनारियो आप घर से बाहर जाने से थोड़ा कतरा रहे हैं, थोड़ा सा डर रहे हैं, so you should try and walk maybe in your building compound जहां भीड़ ना हो, या टेरेस पे चले जाइए जहां कोई नहीं आता है, तो आप वहां पर अच्छे से वॉक कर सकते हैं। ओपन एयर, फ्रेश एयर इज गुड फॉर यू। अगर आप एंटीनेटल एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं तो सारे ट्रेनर्स आजकल ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी कर रहे हैं, तो आप इन क्लासेस में भी रजिस्टर हो सकते हैं और आप गाइडेंस के थ्रू ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस करिए, बिकॉज ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है वो आपको आपकी लंग कैपेसिटी, आपकी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को डेवलप करेगी। कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में मैं आपको यहाँ पर एज अ ब्रीफ दे देती हूँ, बट लेकिन डॉक्टर से चेक करना मत भूलिएगा। यू नीड टू मेक श्योर कि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड योर बॉडी इज रेडी फॉर इट। सो पहली है स्क्वाट्स। सब बोलते हैं आपको डक वॉक्स करो, स्क्वाट्स करो, प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो जब आप स्टार्ट करते हो, आप फर्स्ट टाइम करते हो, तो डोंट डू टू मेनी। 8 to 12 स्क्वाट्स एवरी डे इज व्हाट यू शुड स्टार्ट विद। जैसे ही आपकी बॉडी को हैबिट होती है, प्रैक्टिस होती है, आपकी स्टेमिना बढ़ती है, आप इन स्क्वाट्स को इंक्रीज कर सकते हो। स्क्वाट्स जब आप करते हो तो कोई सपोर्ट लेना जरूरी है, क्योंकि आपके जो एब्डोमेन है वो उधर वेट बढ़ रहा है एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी शिफ्ट हो रही है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप कोई भी फर्म चीज जैसे दीवार या अगर कोई मजबूत कुर्सी या सोफा या टेबल है, उसका सपोर्ट लेकर के आप स्क्वाट्स करें। दूसरी एक्सरसाइज है आपकी बटरफ्लाईज, जो सेंटर की पिक्चर है। अब बटरफ्लाई एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी पेल्विस को, जहां से बेबी को बाहर आना है, उसको अच्छे से वाइड करती है, उसको अच्छे से फ्लेक्सिबल कर देती है। अब बटरफ्लाई आप एक्सरसाइज के तौर पर कर सकते हैं, जैसे आप बटरफ्लाई पोजीशन में बैठ के अपने नीज को अप एंड डाउन फ्लैप करिए, या स्लो फ्लैप या फास्ट फ्लैप। बट ये एक बैठने की अच्छी सी पोजीशन भी है। जब आप टीवी देख रहे हैं, जब आप फोन पे बात कर रहे हैं, जब आप बस जनरल बैठे हैं घर पे, कुछ देर के लिए आप बटरफ्लाई पोजीशन में बैठ जाइए। ये आपका एक सिटिंग पोस्चर भी हो सकता है। अगर आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आप अपने लेग्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करके, स्ट्रेट करके फिर दोबारा इस पोस्चर में आ सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज है आपकी लेग रेजेस। लेग रेजेस भी पेल्विस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है एंड आप लेग रेजेस मैट पर करिए, बेड पर मत करिए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी को स्टेबिलिटी सही मिलेगी। तो आप साइड पे लेट के जो लोअर लेग है उसको फोल्ड कर दीजिए और अपर लेग को आप फुल 90 डिग्रीज पे रेज करने की कोशिश करिए। ये एक्सरसाइज आप दिन में 8 से 12 काउंट्स पर लेग आप स्टार्ट करेंगे एंड देन यू कैन इंक्रीज इट एज योर स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना इंक्रीजेस। अब जो नीचे वाला फोटोग्राफ है विद द पिंक कलर ड्रेस्ड लेडी, शी इज सिटिंग ऑन अ कमोड, वो टॉयलेट सीट पे बैठी है and we have used the picture of the toilet seat, but we don't want you to do this exercise on a toilet seat, right? We want you to do this exercise on your bed or while standing, while walking, that's fine, but toilet seat पे नहीं। just आपको explain करने के लिए, this is your Kegel exercise and ये हम बोलते हैं आपकी pelvic floor vaginal exercises है। आप ये साथ में मेरे यहाँ पर भी कर सकते हैं, बैठे बैठे अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए, अपने एब्डोमिनल मसल्स को नॉर्मल रखिए एंड हल्के से
आप अपने वेजाइनल मसल्स को स्क्वीज करिए, पुल इट इन एज इफ आप यूरिन का फ्लो रोकने की कोशिश कर रहे हैं एंड रिलीज। याद रखिए ब्रीदिंग नॉर्मल है, एब्डोमिनल मसल्स नॉर्मल है। सो स्क्वीज एंड रिलीज, स्क्वीज एंड रिलीज, स्क्वीज एंड रिलीज, स्क्वीज रिलीज, राइट। सो ये आपको दिन में लगभग 50 to 75 काउंट्स करने हैं एंड जरूरी नहीं है कि सारे साथ में करने हैं। यू कैन डू अ फ्यू इन द मॉर्निंग, अ फ्यू इन द आफ्टरनून, अ फ्यू इन द इवनिंग एंड अ फ्यू बिफोर यू स्लीप। द बेस्ट पोजिशन टू डू देम इज इन एन अपराइट पोजिशन। सो आप अगर अपराइट बैठ के करते हैं तो दैट विल गिव यू द बेस्ट बेनिफिट। बट अगर आप भूल गए और आप सोने की तैयारी कर रहे हैं या जस्ट अभी उठे हैं तो आप लेटकर भी कर सकते हैं। ये जो एक एक्सरसाइज है वो डिलीवरी के बाद भी बहुत हेल्पफुल होती है, बट इसकी बात अलग से करेंगे। फिलहाल ये आपकी बर्थ प्रिपरेशन एक्सरसाइज है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही सिंपल डीप ब्रीदिंग। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं हम अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाते हैं। आप मेरे साथ प्लीज ट्राई करिए, एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाइए। टेक अ डीप ब्रेथ इन ऑल द वे टिल योर लोअर एब्डोमेन, कहीं पर ब्रेथ होल्ड नहीं करनी। And exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Right? अब डीप ब्रीदिंग के लिए कुछ क्लॉजेस हैं या कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहले तो आप इसको एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में ना करें, आप इसको ओपन एयर में करें। तो मॉर्निंग जब आप उठते हैं तब कर सकते हैं और दिन में आपको अराउंड 40 to 50 डीप ब्रेथ्स करने हैं। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, अगर आप बेड रेस्ट पर हैं तो भी आप कर सकते हैं बिकॉज ये आपके एब्डोमिनल मसल्स को भी टोन करता है। एंड डिलीवरी के टाइम पर एब्डोमिनल मसल्स बेबी को बाहर पुश करते हैं। अब बात करते हैं फुल टर्म की, राइट। अब लेबर पे आते हैं। जब हम 37 वीक्स क्रॉस करते हैं तभी हम मानते हैं कि आप फुल टर्म हो गए हो। बहुत टाइम इंडिया में ये मिथ रहता है कि 9th मंथ शुरू हुआ और डिलीवरी कभी भी हो सकती है। ऐसा नहीं होता है। 9th मंथ आपका 35th वीक में शुरू होता है एंड इट इज एडवाइजेबल कि आपके बेबी की डिलीवरी 37 वीक्स और 40 वीक्स के बीच में ही हो। अगर आपको लेबर के कोई भी साइंस 37 वीक से पहले नजर आते हैं तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के साथ टच में रहिए। उस समय अगर आपके बेबी फुली रेडी है तो डिलीवरी कर सकते हैं, बट अगर बेबी रेडी नहीं है और आपने इमीडिएटली डॉक्टर से के साथ कांटेक्ट किया तो हो सकता है कि डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेशंस के द्वारा आपके लेबर को रोक सकते हैं। और अगर ये पॉसिबल ना हो तो इट इज पॉसिबल कि बेबी के लंग्स मैच्योर करने के लिए भी आपको मेडिसिन दिए जा सकते हैं। तो इससे आपको NICU, जैसे बेबी को NICU में रखने की जो जरूरत है वो कम हो सकती है, विच ओवरऑल मीन्स कि द फैमिली हैज लेस स्ट्रेस। अब लेबर के क्या साइंस हैं? पहली चीज 15 दिन पहले, अब ये 15 दिन कहाँ से हम गिनते हैं? 15 दिन हम आपके जो डिलीवरी डेट एक्सपेक्टेड है हम वहां से गिनते हैं, राइट। सो 15 डेज प्रायर आपके बेबी का जो हेड है वो ड्रॉप होता है, वो एंगेज होता है। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेबी इज फ्लोटिंग अराउंड, राइट। वो बिल्कुल लेफ्ट राइट अप डाउन समरसॉल्ट भी कर रहे हैं, पर लास्ट में उसको पेल्विस में एंटर करना है तो इसीलिए उसका हेड आपके पेल्विस में आ जाता है। इससे आपको क्या महसूस होगा? पहला, आपको ऐसे लगेगा कि आपका स्टमक का जो शेप है वो चेंज हो गया है। फ्रॉम वाटरमेलन इट विल स्टार्ट लुकिंग लाइक अ पेयर। सो अपर एब्डोमेन में आपके पास बहुत जगह होगी और लोअर एब्डोमेन में आपके पास जगह कम होगी एंड दिस इज समथिंग विच इज कंप्लीटली नॉर्मल, राइट। दूसरी चीज, आपको ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज हो जाएंगे। अब जो ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये फेक कॉन्ट्रैक्शंस हैं।
जो फेक कॉन्ट्रैक्शंस है वो ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी टाइट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, एब्डोमिनल मसल्स टाइट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन इससे सर्विक्स को कोई असर नहीं पड़ता एंड बेबी को के बाहर आने का कोई प्रोसेस नहीं होता, राइट। तीसरी चीज होती है सर्वाइकल चेंजेस। अभी जब प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो यूट्रस है उसका माउथ बिल्कुल लॉन्ग, थिक और टाइटली क्लोज्ड होता है, राइट। अब जब सर्वाइकल चेंजेस होते हैं तो ये जो सर्विक्स है वो स्लोली सॉफ्ट, शॉर्ट होते रहता है एंड इसको चेक करने के लिए सिर्फ डॉक्टर आपको बता सकते हैं। तो जब आप अपने वीकली चेकअप्स के लिए जाते हो, डॉक्टर आपको चेक करते हैं और उनको अगर महसूस होता है कि बेबी का हेड एंगेज हो गया है तो वो एक इंटरनल एग्जाम करते हैं, मतलब विद फिंगर्स दे डू एन इंटरनल वेजाइनल एग्जाम। इससे उनको पता लगता है कि सर्विक्स लॉन्ग से शॉर्ट हो रहा है कि नहीं, हार्ड और टाइटली क्लोज से सॉफ्ट और ओपन हो रहा है कि नहीं। तो ये सर्वाइकल चेंजेस से पता लगता है कि आपकी डिलीवरी लगभग कब होगी। कोई गारंटी फिर भी नहीं है, बट स्लोली आइडियाज मिलते हैं 48 आवर्स प्रायर। अब ये जो सर्विक्स था, जैसे मैंने आपको बताया, ये लॉन्ग, थिक और टाइटली क्लोज्ड है, राइट। तो जब इसमें एक म्यूकस प्लग होता है जो उसको ब्लॉक करे रखता है एंड जब वो थोड़ा सा शॉर्ट होने लगता है तो म्यूकस प्लग भी गिर जाता है। इफ यू सी म्यूकस ऑन योर अंडरपैंट, आपको थोड़ा डिस्चार्ज महसूस होता है अपने अंडरपैंट पे, देन यू नो दैट आपका म्यूकस प्लग गिर रहा है। इस म्यूकस में थोड़ा सा ब्लड भी हो सकता है, सो रेडिश, ब्राउनिश, पिंकिश डिस्चार्ज, बट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अगर ऐसा लगता है कि इट इज लाइक अ पीरियड, then it is a warning sign. You should let the doctor know. Loose motions या multiple bowel movements भी काफी आम है, very regular. So if you feel कि आप multiple times bathroom जा रहे हो, थोड़े से motion soft हो गए हैं, तो it could be a pre-labor sign. Lower back में spasms आते हैं, pain होता है, but ये consistent नहीं होता है. It is like a spasm and वो फिर चले जाता है. तो अगर ये इंटेंस स्पैस्मिक बैक पेन होता है, इट कुड बी अ प्री लेबर साइन। अब इतने डिस्कम्फर्ट्स के बावजूद यू हैव हाई एनर्जी लेवल्स एंड दैट इज व्हाट सिग्निफाइज दैट यू आर रेडी टू बिकम अ मदर। मेनी टाइम्स हम देखते हैं मदर्स इस टाइम पर ये भूल गए, वो करना है, घर साफ हो रहा है, बेबी के कपड़े धुल रहे हैं, बहुत सारी मेहनत शुरू हो जाती है एट दिस टाइम। जब लेबर स्टार्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्शंस शुरू होते हैं, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं। अब ये रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस क्या है, आई एम गोइंग टू शो यू इन अ लिटिल बिट, बट व्हाट दे फील लाइक इज पीरियड क्रैम्प्स। अगर आपको पीरियड क्रैम्प्स कभी नहीं आए हैं, सो डोंट वरी, इट इज समथिंग लाइक जैसे आपको अगर लूज मोशंस होते हैं एंड यू नीड टू विजिट द बाथरूम, तो पेट में एक जैसे करवट पड़ती है, इट कैन फील लाइक दैट। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ती जाती है और जब आप मूव करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो आपकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब समझते हैं कॉन्ट्रैक्शंस को हमको कैसे टाइम करना है, राइट। जब आपको महसूस होता है कि अब कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, सो यू शुड स्टार्ट टाइमिंग देम। आप पेपर पेन पे भी यूज कर सकते हैं, डायरी में लिख सकते हैं या एप्स भी मिलते हैं। सो यू कैन डाउनलोड सम कॉन्ट्रैक्शन टाइमिंग एप्स, आजकल टेक वर्ल्ड हो गया है, सो बहुत एप्स है मार्केट में, यू कैन डाउनलोड देम एंड यू कैन यूज देम टू टाइम योर कॉन्ट्रैक्शंस। व्हाट आर यू गोइंग टू टाइम? आप क्या लिखने वाले हो? फर्स्टली यू विल राइट द बिगिनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन एंड यू विल राइट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन की ड्यूरेशन है, राइट, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इज द ड्यूरेशन। दूसरी चीज जो आप लिख रहे हो, द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन की बिगिनिंग। सो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, ये आपकी कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी है। अब इन दोनों कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन। There is no pain, there is no discomfort, there are no cramps, you are feeling completely normal at this point of time, right? जब आप डॉक्टर को कॉल करते हो, the doctor will want to know what is the duration and what is the frequency. Early labor में जो contraction की duration है
वो बहुत ही शॉर्ट होती है. इट कुड बी जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स ऑल्सो. एंड जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत लॉन्ग होती है, विच मीन्स इट कुड बी एवरी आवर, आवर एंड हाफ ऑल्सो, राइट. बट जैसे जैसे बेबी का बर्थ नजदीक आता है, लेबर प्रोग्रेस करता है, ये ड्यूरेशन बढ़ती जाती है. डिलीवरी के वक्त ड्यूरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन कैन बी 60 to 90 seconds. And the frequency of the contraction can also be every 60 to 90 seconds. So you can understand कि जैसे जैसे डिलीवरी का वक्त नजदीक आता है, लेबर प्रोग्रेस होता है, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी इन सब में चेंजेस नजर आते हैं. एंड दैट टेल्स यू दैट यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू डिलीवर द बेबी. हॉस्पिटल कब जाना चाहिए? जब कॉन्ट्रैक्शंस रेगुलर हो, आपको पैटर्न देख सकते हैं. Also, when the contractions are about 20 minutes apart, this is the time when you should plan to go to the hospital. The second point would be when the water bag breaks. अभी कभी कभी किसी को ऐसे होता है कि contractions तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन पानी छूट गया. So then also you should go to the hospital. ज्यादातर ऐसा होता है कि पहले contractions महसूस होते हैं, फिर पानी छूटता है. बट कभी कभी रिवर्स भी हो सकता है. सो पानी छूटने का मतलब है कि अब जो बेबी की स्टेराइल एनवायरनमेंट है, यूट्राइन एनवायरनमेंट है, वो खुल गई है. एंड इट इज पॉसिबल दैट लेबर विल स्टार्ट एनी टाइम सून. ऑल्सो बेबी कैन गेट सम काइंड ऑफ एन इन्फेक्शन. सो यू शुड इमीडिएटली गो टू द हॉस्पिटल. अगर आपको या आपके पार्टनर को डर लग रहा है, घर पे आप एंग्शियस हो रहे हो, नर्वस हो रहे हो, तो भी आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए. अगर हॉस्पिटल आपके घर से बहुत दूर है तो आपको जल्दी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि कभी ट्रैफिक हो, कभी कुछ और दिक्कत आ जाए रास्ते में. सो देन इट इज बेटर दैट यू गो टू द हॉस्पिटल एंड मेक योरसेल्फ सेफ. जब आप हॉस्पिटल पहुंचोगे, क्या होगा? पहले तो हॉस्पिटल में भीड़ मत लेके जाइए. सिर्फ आप और आपके साथ एक आपका अटेंडेंट जो आपको सपोर्ट कर सकता है, उसके साथ ही आप हॉस्पिटल पहुंचे. मोस्ट हॉस्पिटल्स विल आल्सो वांट टू डू RT-PCR टेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आपको चेक करेंगे कि आपके अगर लेबर कॉन्ट्रैक्शंस वाकई में है तो ही आपको एडमिट किया जाएगा. जनरली होल्डिंग एरिया भी रखते हैं कि RT-PCR आ जाए, उसके बाद आपको मैटरनिटी वार्ड में एडमिट करते हैं. दिस इज जस्ट फॉर सेफ्टी एंड प्रिकॉशन. तो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं आप अपने हॉस्पिटल के साथ चेक कर सकते हैं एज टू व्हाट इज बीइंग फॉलोड करेंटली. जनरली मदर्स बहुत स्ट्रेस लेती हैं कि व्हाट इफ आई एम डायग्नोज्ड कोविड पॉजिटिव इन द लास्ट फ्यू वीक्स. वेल, दैट इज आल्सो समथिंग दैट यू शुड चेक विद योर हॉस्पिटल कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो मेरी डिलीवरी के लिए मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे प्रोसेस फॉलो करना है. बट अगर आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं और तब तक आपके टेस्ट सब नेगेटिव हैं, तो यू कैन सेफली डिलीवर इन योर सेम हॉस्पिटल इटसेल्फ. आपके वाइटल साइंस और बेबी के हार्ट टोन्स मॉनिटर किए जाते हैं और लेबर को ओवरऑल नेचुरली प्रोग्रेस करने दिया जाता है. वी डोंट इंटरफियर, क्योंकि अब तो ये नॉर्मल प्रोसेस है. इसमें अगर आपको पेन रिलीफ वगैरह की जरूरत है तो यस, दैट इज समथिंग द डॉक्टर विल डिस्कस विथ यू. But otherwise, we don't need to do anything. The body will do the job on its own. First stage of labor में पहले तो cervix short और thin होता है. इसको हम बोलते हैं effacement. उसके बाद cervix has to open to 10 centimeters. इसको हम बोलते हैं dilation. Only when the cervix is fully open will the baby start moving down. उससे पहले बेबी नीचे नहीं उतर सकता है. Second stage में baby is going to leave the uterus environment, pass through the birth canal, out of the cervical opening and exit from the vagina. ये पूरा process of the second stage, or that is the delivery of the baby, is called the second stage of labor. Delivery होने के बाद most mothers forget कि एक third stage भी है, which is called the delivery of the placenta. एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में आप तो बेबी को देखने में बिजी रहेंगे. मे बी आप बेबी को होल्ड भी कर रहे हैं, बेबी आपके टमी पे रखा गया है, आपके चेस्ट पे रखा गया है, बट द प्लेसेंटा विल सेपरेट फ्रॉम द वॉल ऑफ द यूट्रस एंड इट विल लीव. तो इस समय भी हल्के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं
एंड प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है. डॉक्टर चेक करेंगे टू एंश्योर कि पूरा प्लेसेंटा डिलीवर हो गया है या नहीं. And this is what is going to be called the completion of your labor and birth. अब ये तो होगी थियोरी कि this is what happens. हम चाहे कुछ भी करें यही प्रोसेस फॉलो होना है, बट इसको हम मैनेज कैसे करेंगे? तो स्ट्रेस इज द मेन थिंग. स्ट्रेस इज व्हाट कॉजेस पेन. जितना आप ज्यादा रिलैक्स रहेंगे उतना मतलब आपको कम स्ट्रेस है, which means there is less pain. जितना कम पेन, that means the labor is going to progress faster. इसीलिए the best labor management tool is actually stress management. Magic tricks बहुत ही essential, important, exciting word है, right? बचपन में हम सब magic shows देखने जाते थे and we used to be amazed कि wow, how is that magician doing this? The same way, there are so many mothers we see who have like really short labors. And we also think like, wow, how did she have such a short labor? And that is what the magic tricks of labor are, to manage labor, right? So let's learn what these are. And they are very simple, very easy to do. It is a lot in the mind. And as long as you learn that, you should be absolutely fine. First one, avoid screaming. अब एक छोटी सी प्रैक्टिस हम साथ में करते हैं, राइट? आप अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल कर दीजिए, जस्ट मेक योरसेल्फ एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, राइट? अब आप अपने फेशियल मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स, टोटली रिलैक्स्ड, ओके? रिलैक्स. कैन यू फील योर वेजाइनल मसल्स? आपके वेजाइनल मसल्स किस तरह फील कर रहे हैं? इस थॉट को आप ध्यान में रखिए. अभी नेक्स्ट चीज है, आपको फ्राउन करना है. मतलब आप किसी चीज से गुस्सा है तो आप फ्राउन करिए. जब आप फ्राउन करते हो, आप देखो आपके वेजाइनल मसल्स को फील करके, हाउ डू दे फील? दे फील अ लिटिल टाइट, राइट? अब मैं काउंट ऑफ 3 पे आपको स्क्रीम करना है. अब घर पर ही हो, कोई नहीं सुन रहा. जब मैं 3 काउंट करूं, आप स्क्रीम करिए, जोर से चिल्लाइए और फील करिए कि आपके वेजाइनल मसल्स किस तरह फील करते हैं. ओके, डोंट वरी, मैं भी आपके साथ स्क्रीम करूंगी. रेडी? 1 2 3. डिड यू फील इट? वेजाइनल मसल्स टाइट होते हैं. अब एक और चीज करेंगे, डोंट वरी, ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है. जहां पर भी बैठे हैं आप स्माइल करिए. Relax your facial muscles. Give a beautiful smile. Think about your baby. अब आपके vaginal muscles कैसे feel कर रहे हैं? They are feeling much more relaxed. जब मैं mothers को ये बोलती हूँ कि आपके जो vaginal muscles हैं वही करते हैं जो आपके jaw muscles करते हैं, they don't believe me. But when we do this exercise, then they definitely understand that it is true. So अगर आप labor के टाइम पे scream करेंगे, चिल्लाएंगे, तो आपके वेजाइनल मसल्स भी टाइट हो जाएंगे. तो अगर हम स्क्रीम नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम ब्रीथ करेंगे, राइट? वी हैव टू डू आवर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो हम प्रेगनेंसी में कर रहे थे और डीप ब्रीदिंग, दोज आर नॉट एलिजिबल. ओके, आपको वो वाले नहीं करने. अभी आपको शॉर्ट ब्रेथ्स करने हैं. लेट्स लर्न इट टुगेदर. And then I will tell you how to practice it. Okay, so sit comfortably. Place one hand on your chest. Place one hand on your abdomen. Take a deep breath in. Exhale. Inhale. Exhale. Now breathe in through your nose. Blow out through your mouth. Make it short breaths जो सिर्फ आपके chest तक हैं. तो जो आपके chest का हाथ है वो आपका नहीं मूव, वो मूव होगा, और जो एब्डोमेन पे हाथ है वो नहीं मूव होगा. ओके, रेडी? Keep going. Keep going. We'll practice it for about 60 seconds. This is the duration of your contraction. Keep breathing short breaths in through the nose,
आउट थ्रू द माउथ एंड आपका कॉन्ट्रैक्शन डिसअपियर हो गया है, चला गया है. सो रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ इन, एक्सहेल एंड रिलैक्स. अब कॉन्ट्रैक्शन का रेस्ट पीरियड है, रिलैक्सेशन पीरियड, जैसे मैंने आपको ग्राफ पे दिखाया. सो एट दिस टाइम देयर इज नो पेन, सो यू शुड ब्रीथ नॉर्मली and you should calm yourself. You should think positive. You should not worry about what is happening. मतलब आजू बाजू आपके क्या हो रहा है आपको वो नहीं सोचना है. आपको ये नहीं सोचना है oh my god कितना पेन है. आपको ये सोचना है कि this is the birth of my baby and it is a very positive thing, right? So you will relax and you will conserve your energy. अब दूसरी contraction start होती है. So take a deep breath in, exhale, inhale, exhale, breathe in through your nose, blow out through your mouth, and the contraction is disappearing. Take a deep breath in and relax. Remember period of relaxation. So अपने आप को completely loose और relaxed रखिए. Right. अब आपको घर पे क्या करना है? जैसे ही आपका 28th week यानी कि third trimester start होता है, you should start practicing this. जल्दी नहीं करिए, मतलब फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में करने की खास जरूरत नहीं है. लास्ट ट्राइमेस्टर प्रैक्टिस इज इनफ. सो आपको अपने आगे क्लॉक रखना है. अपने आप को दिमाग में आप अपने आप को ऑटो सजेशन देंगे दैट माय कॉन्ट्रैक्शन इज स्टार्टिंग एंड यू स्विच टू शॉर्ट ब्रेथ्स. 1 मिनट के लिए आप शॉर्ट ब्रेथ्स करिए. 1 मिनट के लिए आप अपने आप को ब्रेक और रिलैक्सेशन मोड में डाल दीजिए, जैसे आप मेडिटेट कर रहे हो. And then again do a 1 minute contraction with a 1 minute break. Do this 5 times every day once your 28th week starts. So this will help you to be prepared. जब actual contractions होंगे, आपकी body को इसकी आदत है. You will be prepared to do it. The next thing is you have to visit the bathroom, right? अगर आपको कोई IV वगैरह नहीं attached है, तो आप इजिली मूव कर सकते हैं. अब बाथरूम हम क्यों विजिट कर रहे हैं? रिमेंबर जब लेबर स्टार्ट होने से पहले इन द लास्ट 48 आवर्स आपको मल्टीपल बाउल मूवमेंट्स होते हैं. तो आपकी जो बाउल्स हैं, अगर आप इस डायग्राम पे देखेंगे या पिक्चर पे देखेंगे तो ये बाउल्स हैं, ये एम्प्टी रहते हैं. तो यहाँ पे जो बर्थ कनाल है उसको ज्यादा जगह मिल जाती है. दूसरे साइड पे आपका ब्लैडर है. तो जब आप फ्रीक्वेंटली बाथरूम विजिट करते हैं एवरी 1 आवर और सो ड्यूरिंग लेबर, तो आपका ब्लैडर भी एम्प्टी हो जाता है. तो बर्थ कनाल को, जो आपके यूट्रस का बर्थ कनाल है, उसको जगह ज्यादा मिल जाती है. इट कैन एक्सपैंड अ लिटिल मोर, तो बेबी कैन मूव आउट अ लिटिल बिट मोर फास्टर. दूसरी एडवांटेज ये भी होती है, जब आप टॉयलेट विजिट करते हैं, आप यूरिन पास करते हैं, यू कीप योर लेग्स लिटिल वाइडर and your body relaxes. When your body relaxes, you feel absolutely comfortable, and that much time the body is keeping open, which is very important for the baby to move down further. I know कभी-कभी टेंशन होता है कि बाथरूम में डिलीवरी ना हो जाए, but don't worry. जब तक आपका cervix full 10 centimeters नहीं खुलता, the baby cannot come out. So डॉक्टर्स आपको चेक करते रहेंगे, और जब आप फुल्ली डायलेटेड होने पे नजदीक होंगे, they will not let you move around. Next thing is try to be in an upright position. अगर आप पूरा टाइम लेट के रहते हैं तो आपका जो बर्थ कनाल है वो इस तरह से फ्लैट नहीं है, वो एक्चुअली थोड़ा सा अपवर्ड टिल्टेड है. सो बेबी को इस तरह से आउटवर्ड क्लाइंब करना पड़ता है, which makes it more difficult, which takes a longer time. तो इसीलिए अगर आप उठ के बैठेंगे तो आपको आपका जो बर्थ कनाल का शेप है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, एंड दूसरा यू विल गेट द एडवांटेज ऑफ ग्रेविटी. तो बीच बीच में ऑफ कोर्स रेस्ट इज इंपॉर्टेंट, बट बीच बीच में व्हेनेवर यू फील यू कैन सिट अप आल्सो, सो दैट विल गिव यू द एडवांटेज ऑफ ग्रेविटी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मूवमेंट. जब आप कोई भी पिलो, आप इमेजिन करिए आपको अपने घर के पिलो कवर्स चेंज करने हैं, तो आप क्या करेंगे? यू नीड टू शेक द पिलो, पुल द पिलो, थोड़ा सा आप उसको मूवमेंट देंगे, राइट? तो आप इसी तरह से इमेजिन करिए कि आपकी बेबी पिलो है और आपका यूट्रस पिलो कवर है. आप उसको कैसे निकालेंगे? आप एक जगह लेट करके तो नहीं निकलेगा. तो यू शुड ट्राई टू मूव. अगर आप वॉक करते हैं, थोड़ा स्वे करते हैं, लंजेस, स्क्वाट्स, जो भी आप मूवमेंट्स कर सकते हैं कंफर्टेबली, आपको लेबर के दौरान करने चाहिए.
कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मुश्किल होता है बिकॉज उस समय पेन ज्यादा होता है, बट इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस आप जरूर मूव कर सकते हैं। लेबर के टाइम पे मदर्स को मसाज बहुत ही पसंद आता है बिकॉज मसाज इज फॉर रिलैक्सेशन। अब लोअर बैक में पेन हो रहा है, रिमेम्बर दो स्पैज्मिक लोअर बैक पेन्स, तो लोअर बैक में पेन हो रहा है तो इस तरह से अगर पार्टनर उनको लोअर बैक पे मसाज करते हैं, अगर मदर लेटी है, बैठी है, कहीं पर भी पोजीशन है जो कंफर्टेबल लोअर बैक के लिए मसाज हो सकता है। सो जो भी आपके लेबर सपोर्ट पर्सन है आपको लोअर बैक पे मसाज दे सकते हैं। नेक और शोल्डर मेन पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेस, राइट? स्पेशली जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, दे विल रियलाइज दिस कि अगर नेक और शोल्डर मसाज मिलता है तो इट फील्स ऑसम, इजंट इट? तो लेबर के दौरान भी रिलैक्स करने के लिए अपने आप को यू कैन हैव अ मसाज ऑन योर लोअर, on your neck and your shoulders. Some mothers will like a massage on their tummy also. But इतना ध्यान रखना है कि जो टमी मसाज होता है वो बिल्कुल just strokes होता है. You can't make it a tight massage. It can't be a heavy massage or it can't be a very firm massage. It has to be just gentle strokes to the abdomen area. Pain relief के natural methods हैं. रिलैक्स करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर प्रैक्टिस करिए, जेंटल मसाजेस इन डिफरेंट एरियाज डिपेंडिंग ऑन द कंफर्ट ऑफ द मदर। आप पॉजिटिव इमेजेस के बारे में भी सोच सकते हैं, जैसे आप अपने हनीमून के बारे में सोचिए या कोई भी आपकी जो प्लेजेंट एक्सपीरियंस है, या you can imagine that you are walking in the sunset on the beach. So any positive images that you can think of. You can also do some diversion techniques. Jesse, for example, you can do your Om chanting. You can chant other mantras. You can watch a favorite TV show. You can listen to music. You can count from 100 to 1. You can go from Z to A. These are all diversion techniques. So whatever works for you to distract you can be used as a natural pain relief method. अब लेबर के दौरान खाना पीना is always a question mark. So it's better that you first check with your doctor. जैसे ही आप एडमिट होते हो, आप डॉक्टर से चेक कर लो कि am I allowed to eat and drink. Keeping yourself hydrated, मतलब आप थोड़ा थोड़ा पानी सिप कर सकते हैं. It will help to keep you hydrated and it will keep your energy levels a little up. Because जब dehydration होता है, we start feeling lethargic also. You can suck on ice chips अगर ये available हो तो. But if ice chips are not available, you can sip on cold water, chilled water, because you're in labor. So your body is working hard. When you work hard, your body is heated up, which means we need to cool it down. So hydration and cooling, ये दोनों चीजें आपको लेबर के टाइम पे बहुत हेल्प करेंगी. You can try some high sugar foods, but लेकिन very very small quantities. ये भी चेक करके डॉक्टर से. Some examples are glucose water, sweets, glucose biscuits, or small pieces of chocolate. But really small pieces. You can't even don't eat the whole biscuit. Have 2-3 bites and leave it on the side. So that will give you some sugar rushes, जो आपको energy देगा. Labor के दौरान large meals can cause vomiting. So, even अगर hospital में आपको full खाना मिलता है, so have small portions. Don't have a lot. So otherwise, if the pain becomes intense, आपको vomiting हो सकती है, or it can also be risky if you need an emergency surgery. So अगर आप घर पर हैं और आपका labor start होता है, dinner time है, आप सोचते हैं कि चलिए कुछ खा के ही निकलते हैं hospital के लिए. So have something light like a khichdi or some soup. Don't have like a full-fledged meal with non-veg and etc. so that your stomach can digest it quickly. अब ये तो थे नेचुरल पेन रिलीफ मेथड्स. मेडिकल पेन रिलीफ ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि आप डॉक्टर से डिस्कस करके एपिड्यूरल एनाल्जेसिया इसके बारे में बात कर सकते हैं. एपिड्यूरल आपको लोअर बैक में दिया जाता है, which gives you pain relief or complete numbness in the lower body. इससे
लेबर तो चालू रहता है, कॉन्ट्रैक्शंस तो होते हैं, लेकिन जो सिग्नल्स ऑफ पेन होते हैं आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचते, सो यू डोंट परसीव द पेन. दिस इज समथिंग जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं फॉर ऑल लोअर बॉडी सर्जरीज. इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, सो डोंट बी स्कैर्ड. जनरली एपिड्यूरल अगर आप लेना चाहते हैं तो 2 to 3 सेंटीमीटर डायलेशन के बाद ही लेना चाहिए. और अगर आप ऑलमोस्ट रेडी हैं, 8 और 9 सेंटीमीटर तक पहुंच गए हैं, तो एपिड्यूरल लेने का कोई फायदा नहीं है. इन बिटवीन का जो फेज है, बिटवीन 3 to 8 सेंटीमीटर, एपिड्यूरल कैन बी वेरी हेल्पफुल. It is best suited for mothers who have long and extremely painful labors. कभी कभी बेबी की पोजीशन या कुछ ऊपर नीचे सही नहीं होता है, तो लेबर शायद थोड़ा लॉन्ग हो सकता है. तो अपने आप को रिलीफ के लिए to ensure that you are fresh when the baby is born and you are able to push the baby out also effectively, you can consider epidural analgesia. Spinal block generally cesarean के लिए यूज होता है because we need to give you complete pain relief. So epidural is given like a catheter जिसमें आपको continuous dosage of medication जाता है. Spinal block is more like an injection which is a single shot and will give you the relief for the entire period of the surgery. Entonox is available in some facilities. This is also called laughing gas or nitrous oxide. ये बहुत ही शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 8 या 9 सेंटीमीटर पहुंच गए हैं and you need some relief at that point of time, so they might suggest कि okay, you can try this because we can't give you anything else at that point of time. But it is really short term and it is very self controlled. It is like a gas mask. जब आपको पेन हिट होता है तो you can take a few breaths of the Entonox and then keep it aside. So this is again, as I'm saying, it's short term. It's not something which is a long term relief. कुछ केसेस में सर्जिकल बर्थ यानी कि सिजेरियन सेक्शन होने के चांसेस होते हैं. कंडीशंस कभी कभी प्री होते हैं, मतलब मालूम है, जैसे बेबी का पोजीशन, प्लेसेंटा का पोजीशन, कोई कंडीशन जो पहले से ही हमको पता है. सो डॉक्टर आपके साथ डेट फिक्स करके 10 to 12 days in advance of your expected due date will plan a surgical birth. Surgical birth जब planned होते हैं तो obviously it is also depending on the baby's readiness. तो डॉक्टर्स आपको रेगुलरली चेक करते हैं. If the baby is ready and fully developed, only then the baby is delivered surgically. कुछ केसेस में अनप्लान्ड सिजेरियन होता है, तो आप एवरीथिंग इज नॉर्मल लेबर भी शुरू हो जाता है, बट उसके बाद भी सर्जरी करने की जरूरत पड़ सकती है. इट कुड बी पॉसिबल कि सर्विक्स डायलेट नहीं होता, तो हम कंट्रैक्शंस हो रहे हैं, वी हैव बीन स्पीकिंग लॉन्ग थिक टाइटली क्लोज सर्विक्स खुल जाएगा, बट मे बी नहीं खुलता. सर्विक्स तो खुल जाता है लेकिन बेबी मूव नहीं करता. कभी कभी बेबी इज ऑब्स्ट्रक्टेड फॉर सम रीजन, द बेबी डज नॉट मूव डाउन. इवन दो आप अच्छे से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, फिर भी बेबी को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है बराबर से. सो बेबी माइट शो साइंस ऑफ डिस्ट्रेस, हार्ट रेट फ्लक्चुएशंस, and the doctor might recommend that we need to deliver the baby ASAP. Some mothers might develop an infection. So if you develop a temperature, the doctor might indicate that a surgical birth is required. ये सारी चीजें बहुत ही लास्ट मिनट होती हैं, which means इसके जो consent forms हैं वो पहले से ही साइन हो जाते हैं, and you may not be able to get very detailed explanation on those things at the time of the delivery. So don't get stressed, don't get anxious. सर्जिकल बर्थ अगर आपके डॉक्टर करते हैं, इट्स ओनली डन टू सेव लाइव्स. आपकी तरफ से भी यू शुड नॉट टेक इट एज एन ऑप्शन ऑफ कन्वीनियंस. मुझे डर लगता है पेन से, सो आई वांट टू डिलीवर सर्जिकली. नो, नॉट अ गुड आइडिया. पेन इज नॉर्मल, इट कैन बी मैनेज्ड. या तो आपको कोई ऑस्पिशियस डेट चाहिए, मुझे इसी टाइम पे डिलीवर करना है, दैट्स आल्सो नॉट समथिंग व्हिच इज अ गुड आइडिया. जस्ट कंसिडर दैट सर्जिकल बर्थ इज ओनली टू सेव लाइव्स. बहुत ही essential point, birth is a new beginning. You should welcome it with positivity. If you see this picture, it's such a beautiful baby, and this is what we are welcoming into the world. A very, very positive, beautiful baby. So you should not think of it as, oh my God, it's a horrible day, it's so much pain, it's going to be so much discomfort. आप उसको positively लेंगे, so things will definitely be positive for you. When is a parent born?
When your world changes in a moment. Nani? Or when the moment is celebrated by all. When you start learning again. Or with a new role. Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank, Cord Life. One chance, one choice. Hi, ma'am. Welcome. Hello. Thank you for joining us. So, just from the audience perspective, Dr. Anita has joined us, and I'm going to Hello. hand it to her. Hope everyone enjoyed this. क्योंकि डॉक्टर सोनाली को तो बहुत देर से देख रही हूँ कि शी इज एक्सप्लेनिंग वेरी नाइसली इवन, है ना. तो मैं तो कहती हूँ सबको कि बी रेडी फॉर नॉर्मल डिलीवरी. एटलीस्ट एवरीवन शुड बी गिवन अ ट्रायल फॉर नॉर्मल डिलीवरी. बाकी क्या हो नो वन नोज, बट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, हाउ यू हैव टू गो एंड हाउ यू हैव टू प्रोसीड फॉर दैट, यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट. एंड मेजॉरिटी चीजें कहाँ पर यू अल्टीमेटली बाद में प्रॉब्लम कहाँ आती है, वंस यू एंड अप लाइक लेबर पेन्स आए, लेबर पेन्स में आप पैनिक करने लग जाते हो. जब पैनिक वाली सिचुएशन आती है तो देन अल्टीमेटली बेबी इज ऑल्सो अफेक्टेड. तो व्हाट यू शुड बी लाइक प्लानिंग फ्रॉम इनिशियल डेज, like 3rd month onward ki yes you have to go for a normal delivery, and most important phase for all is like the delivery time itself. तो breathing exercises और कैसे अपने दिमाग को शांत रखना है और कैसे you have to focus on yourself. These things has to be learned out because majority of the cesareans which are like done these days because कि हम bear नहीं कर पा रहे हैं pain, या I'm not able to like go in this phase because of these intense pains and these देखो वो होते आ रहे हैं, आज से नहीं आ रहे हैं. नॉर्मल लेबर पेन्स बहुत पहले से आ रहे हैं, बट हाउ यू आर गोइंग टू डील विद एंड हाउ यू आर गोइंग टू कोप विद दैट, अल्टीमेटली दैट मैटर्स. तो डॉक्टर सोनाली हैज एक्सप्लेन्ड वेरी नाइसली अबाउट दीज. तो होप मतलब बहुत अच्छा आपको फायदा करेगा फ्यूचर में, एंड दीज एक्सरसाइजेस नीड टू बी लर्न. ओके, थैंक यू डॉक्टर सोनाली. थैंक यू. Thank you so much, ma'am, for joining us and giving us your precious time and allowing us to speak to your patients. This recording will be shared with all the patients also, so they can revise and review also at home. Hopefully, it will help them, and it will have much better outcomes in the delivery rooms also. Yeah, done. That is the most required thing, right? Lovely, absolutely. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you. So, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक स्पेशल सरप्राइज भी है टुवर्ड्स द एंड, विच इज योर वाउचर. तो ये लाइफ इन परसूट्स की तरफ से और कॉड लाइफ की तरफ से फ्लैट 25% ऑफ का वाउचर है. लाइफ इन परसूट्स इज अ ब्रांड विच क्रिएट्स ऑर्गेनिक एंड नेचुरल वेलनेस प्रोडक्ट्स फॉर मदर एंड बेबी. एंड इसमें आप अपने लिए मसाज ऑयल्स, बेबी के लिए सोप्स, ऑयल्स वगैरह घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं. सो कॉड लाइफ की टीम आपको रिकॉर्डिंग प्लस ये वाउचर शेयर करेगी इन अबाउट 48 to 72 आवर्स. तो इसका आप फुल फायदा उठाइएगा. थोड़ी सी शॉपिंग घर बैठे विदाउट मेकिंग योरसेल्फ अनसेफ एंड स्टेपिंग आउट फ्रॉम योर होम्स कैन बी डन. ये कुछ बुक्स हैं जो अवेलेबल है Amazon पे. These have been written by me. Exercise, parenting mantras, and recipe book. So these are things that are available. You can look it up, and if you would like to kind of get these for yourself, please definitely go ahead and do that. स्क्रीन पे आप मैंने कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, मेरे भी हैं और कॉड लाइफ के भी हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि अगर आपको वाउचर और रिकॉर्डिंग ना मिली तो यू कैन गेट इन टच ऑन दीज नंबर्स व्हिच आर देयर फॉर कॉड लाइफ इन द लोअर हाफ ऑफ द स्क्रीन. मेरा पर्सनल वेबसाइट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एज वेल एज व्हाट्सएप टिप्स का ग्रुप जो है उसके लिए भी मैंने डिटेल्स डाल दिए हैं. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दीज थिंग्स. And we'd love to see you on our social media so that we can stay in touch, not just during pregnancy but even in your parenting journey.
Now we are open to questions. जो भी आपके questions हैं, I hope आपने बहुत सारे डाले हैं for me in the question box, and I would be happy to answer them. Okay, so the first question is, from which month can we start the birth exercises? So you can actually start once you enter your second trimester, but it is important कि आप doctor से check कर लें पहले, because if everything is okay and comfortable with your pregnancy, only then you can do these exercises. So the next question is that my sister's liver juice is not going to the gallbladder. It is mixing with the blood, so it is causing inflammation in her skin and itching, which is not tolerable in pregnancy. That is true. Some mothers, because of hormonal changes, do have liver function issues, and there are medications for this. She should discuss this with her doctor, and the doctor will prescribe the appropriate medications which will give her relief. Besides the medication also, if she's still feeling itching, she can use some calamine lotion to make herself comfortable. The next question is, as the COVID cases are increasing, my doctor is suggesting C-section to avoid COVID scenarios. Ma'am, this is something that you're going to have to discuss with your doctor as to what is comfortable for the facility and for you. It is true that, if you wait for natural labor, there is a possibility that you could become COVID positive. But if you are, and you and your family are taking due precautions and not really stepping out and isolating yourself at home, then you do have a possibility of not contracting. So we discuss this. It's something which is a personal preference between you and the doctor. What about if I'm pregnant with IVF twins and have decided for a planned C-section? Yes, definitely. So in twin pregnancies, what happens is that most of the times the positions of the baby may not be favorable for a vaginal birth. So the doctors do prefer that plan a C-section for twins just to ensure that there is no risk. In IVF cases also, the doctors prefer it because it is really special scenario. There's been a lot of effort for the pregnancy. So if it's IVF and twins combined, taking a risk might not be something that the doctor would prefer. I have precondition of PSVR, which is rapid heart rate issue. Should I opt for a C-section? This is also something which is a medical condition. You have to discuss this with your doctor. If it is controllable by medication, then you may not need to go for a cesarean section. But if you feel, or if the doctor feels that it could escalate, at that point also a last minute C-section can be planned. Which type of meditation we can do in pregnancy? Okay. So ma'am, when we talk about meditation, generally kya hota hai? People think that meditation ka matlab hai we are doing like a long 1 hour, 1.5 hour in complete isolation and silence. It is not like that. Meditation can even be for a few short seconds. Sometimes just deep breathing also is a form of meditation. Closing your eyes and listening to some relaxation music is also a form of meditation. So whatever you are comfortable with, whatever works for you, it depends. So sometimes when you're feeling stressed out, just dimming the lights and just doing some deep breathing, that is meditation. So you can do all of these forms of meditation during pregnancy. Thank you. I'm so glad that I could be helpful. Thank you for the kind words. We still have a couple of minutes more before we have to close the session, so that you can, if there are any more questions, I'd be really happy to answer them. We are also happy to get feedback. So if there is any feedback that you would like to share, you will also get a link to share a feedback after the session. So ensure that you do that, because that's a good learning experience for us. You can also share what kind of sessions that you'd like to have more in the future. So it will help us to plan further sessions as well. Thank you so much. I'm
I'm happy that you enjoyed the session. Are there any further questions? Thank you so much for joining us on this Saturday afternoon. And we look forward to staying in touch. You can stay in touch through the Cod Life portal also, on their Instagram and Facebook pages, my details. Make sure you have all these phone numbers with you. Wish you a very, very safe and happy pregnancy and a comfortable birth and smiling babies. So wish you all the very best. Have a great weekend ahead. Stay safe, stay healthy. When is a parent born? When your world changes in a moment. Nani? Or when the moment is celebrated by all. When you start learning again. Or with a new role. Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice.